Let's see. You know about magnetic flux, its unit. You know magnetic flux, the uniform magnetic field. Flux is equal to how much? You know, V magnetic flux density into area vector. Area vector, students, you know that is always perpendicular to the plane and away from the plane. You are seeing, if you are seeing to your copy, then you put the plane vertically upward, it will be upward, away from your plane. Here you see area vector is perpendicular to this plane and away. Here you see upward area vector. Here you see the plane is inclined theta, area vector is in this direction. So that B dot A, that means is equal to VA cos theta. And theta is the angle between B and area vector. You know theta is the angle between B and area vector. Correct? You know all those things. Here you see they're in same direction. Theta is 0 degree here. Maximum flux. Here theta is equal to 90 degree in the next case. Sorry, here theta is equal to 0 degree. So maximum flux because cos 0 is 1. Here the angle is 90 degree. So cos 90 is equal to 0. So 0 flux. And here if it is inclined, and what angle it is inclined, I will take the component. So it is BA cos theta. Okay. But let's take some examples so that you will be able to understand in which direction the magnetic field and in which direction the area vector will be. Let's student, for example, say, let's take a three-dimensional coordinate system. Let this is x-axis, correct? This is y-axis, and this is z-axis. And student, plate is placed here in xy plane. Okay. So tell me its area vector. Its area vector will be in which direction? Student, this is y, this is x, and z is perpendicular. Look to the room corner, you can understand. Look to the wall you are sitting in the corner, you see the upward. This is top of the room, foot of roof, yes or no? This is one corner of the room, this is one corner of the room, this is one corner of the room. I have kept a plate here. So student, definitely the area vector will be along which direction? Along z direction. Na? It will be perpendicular and it will be outward. Getting? Yes or no? So let at a given place, the horizontal and the vertical components of the Earth's magnetic field. Let this is the horizontal component of Earth's magnetic field in this direction. Let this is the vertical uh, field of Earth's magnetic field along x and y axis. Okay. Friend, what is the total flux of Earth's magnetic field associated with the area S? Then let this is the area S. What is the total magnetic field associated with it? Let's see. Friends, you are seeing it's shown BH is along x-axis and BV is along negative y-axis. So we can write the Earth magnetic field will be in which direction? Vectorially, I will write the Earth magnetic field. The Earth magnetic field will be in which direction, students? Semi B is equal to how much? BH BHI cap. Yes or no? Because along positive x-axis, and as it is shown in the diagram, BV minus J cap. तो इसलिए मैंने minus ले लिया. Yes or no? And should area vector is going to be how much? The area vector is going to be how much? Area is given S. So that is going to be how much along Z axis area vector. So that is SK cap. Okay. And now I want to find flux in the XY plane. So flux in the XY plane will be how much, student? That is B dot A, correct? B is equal to how much we got? BHI cap, correct? Minus BVJ cap, correct? Right? Into A. A is how much? SK cap. Friends, see here. If I cap will be multiplied with K cap, B dot A, na, dot product I am doing. A dot B is equal to AB cos theta. Yes or no? So I K, both are perpendicular, na? It will be 0. J K, but this is also perpendicular, na? So what will be the net flux associated with XY plane? Students, 0, na? 0, na, students? Yes, sir. Understood, na, Yes, students? sir. Just write. Student, let in the same case. Let in the same case. Let same. This is X. This is Y. Okay. And let this is Z. Okay. By seeing only, you can say, if I have placed the let I have placed the coil in this plane. Okay, students. I have placed the coil in this plane. So now the area vector BV is in this direction and BH is in this direction. So
what will the let in this case the area vector will be in which direction? In this direction, na? It will be along x-axis, na students. If I am placing it in y-z plane, it will be along x-axis. If I am placing it along xz plane, then it will be y-axis, along y-axis. Yes or no? So here area vector is equal to how much in this case? Yes, I cap. Correct. Because I have kept in yz plane and perpendicular means yz plane to perpendicular, so that is x. Okay. Got it. So if I'm interested to find the flux in yz plane, then what I have to do? In the same way, can you say student bhi cap minus bvj cap, and now you got si cap. J is 0, but I cap can be multiplied with I cap, na? Same, so that is BH into S. Horizontal magnetic field BH into what is area vector area. By multiplying, I could get the flux in YZ plane. Got it or not? Right, another example. The plane of a coil, of area 1 meter square. Students, एक coil है जिसका area है 1 meter square, correct? And उस coil में है 50 tons. How many tons are there? 50 tons are there. 50 tons. And perpendicular to the magnetic field, that coil is placed perpendicular to the magnetic field of 3 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. Weber per meter square. So he's asking how much magnetic flux linked with each. He's asking how much magnetic flux, linked with it. How much magnetic flux linked with it. Friends, क्या है phi is equal to ba है. अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया तो nb है, ठीक है. और यहाँ पर n कितना दिया हुआ है 50, b कितना दिया हुआ है 3 into 10 to the minus 5, करेक्ट. और एरिया कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर. फ्रेंड्स, एरिया perpendicular to the magnetic field, students. See here, coil is having 50 turns is placed perpendicular to the magnetic field. समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो कॉइल जो है ना ऐसे रखा गया है. अगर मैंने कॉइल को ऐसे रखा स्टूडेंट्स, तो उसकी एरिया वेक्टर है जो किस तरफ होगा, वो अलग द लाइन होगा ना. तो आप परपेंडिकुलर पे मत जाओ, यही बड़ा कंफ्यूजन होता है. 0 लिख देते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 90 नहीं, परपेंडिकुलर किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ. बट एरिया वेक्टर किस तरफ होगा अगर परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे यहाँ पर. और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिए तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी इंटू ए, 50 into 3 into 10 to the minus 5 into 1. So that is how much? 150 into 10 to the power minus 5 Weber. Okay, just right. Lenz law says that the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic field or magnetic flux that produced it. That means student, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पर एक कॉइल मैंने रख दिया, ठीक है. आप अपनी कॉपी के ऊपर कॉइल बना सकते हो, नहीं तो कॉपी के ऊपर परपेंडिकुलर रख सकते हो. फ्रेंड, जब मैं एक बार मैग्नेट को मैं जब इस तरफ लेके जाऊंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं साउथ पोल को इस तरफ लिया और नॉर्थ को इस तरफ लिया, लेट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. फ्रेंड, समझ, ठीक से समझो. मैंने साउथ पोल को इस तरफ लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये एक क्लोज्ड सर्किट है. सो डेफिनेटली यहाँ पर करंट फ्लो करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर करंट फ्लो करेगा. और वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो कि ओरिजिनल, क्योंकि जब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा. सो दिस इज बी ओरिजिनल, मैग्नेटिक फील्ड है. और इसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा. स्टूडेंट्स, आई डोंट नो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, बट जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये कि नहीं? जब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा. उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट? ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करेगा. दैट मींस अगर ये साउथ पोल है स्टूडेंट, समझो साउथ पोल है, मतलब साउथ पोल में क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. यस और नो? और
अगर ये साउथ पोल है उसको अपोज करेगा, मतलब स्टूडेंट इसको आने नहीं देगा। तो इसको अगर आने नहीं देगा तो ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा? अगर साउथ पोल उस तरफ जा रहा है तो ये कौन सी पोल की तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? अगर ये साउथ पोल है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ये साउथ पोल होगा, तभी जाके उसको अपोज करेगा। क्योंकि अगर नॉर्थ पोल बन गया ये तो अट्रैक्ट करेगा ना, व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ। ये एक्सपेरिमेंटल है। यस सर। एक्सपेरिमेंट करके हम देखें कि जब ये जा रहा है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये उसको अपोज करेगा हमेशा। और कोई भी कॉइल पे स्टूडेंट्स देखो, साउथ पोल बनने के लिए, साउथ पोल मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है? नॉर्थ पोल से अगर देखेंगे तो इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। दे गो आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन साउथ पोल। ये सब नो। तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर, अगर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। ये सर नो। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन कब होगा स्टूडेंट्स? जब ये देखो, दो तरह की चीज में दिखाता हूँ। जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होता है, ये इनटू द प्लेन होता है ना स्टूडेंट्स, और ये होता है आउट ऑफ द प्लेन। अपनी कॉपी पे कॉइल बनाओ। आउट ऑफ द प्लेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस केस पे बाहर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड, और यहाँ पर इनटू द प्लेन जा रहा है। और राइट हैंड थंब रूल डाल दो आप। राइट हैंड थंब रूल आप डाल दो। अगर थंब को मैंने ले लिया, अगर थंब अपवर्ड की तरफ है, अगर थंब यहाँ पर इनटू द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा स्टूडेंट्स? देख सकते हो ना आप लोग यहाँ पर। तो इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा। और यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड आउट ऑफ द प्लेन। ये सब स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी अपवर्ड और आउटवर्ड। एंड अपवर्ड मतलब हमेशा नॉर्थ से निकलता है, तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पर आप देख रहे हो ये साउथ पोल की तरह इनटू द प्लेन जा रहा है। अगर थंब ले लो आप, थंब अंदर की तरफ दिखा रहा है, मतलब करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। करेक्ट? समझ में आया? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये साउथ पोल है, मतलब साउथ पे एंटर होता है, साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है। तो इसको अपोज करने के लिए ये भी साउथ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए ना। तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मतलब इनटू द प्लेन होगा। सो इनटू द प्लेन होगा मतलब करंट कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो गया? क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। सारे केसेस बता देता हूँ, फिर ब्रीफली एक आइडिया आ जाएगा। क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। लेकिन उसी केस में स्टूडेंट्स, अगर मैंने कॉइल को रखा और मैंने नॉर्थ पोल को उस तरफ लिया, ध्यान से देखो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, मैंने इस तरफ लिया नॉर्थ पोल को, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा ना। ठीक है, नॉर्थ के सिंबल दे दो। तो अगर नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है तो स्टूडेंट क्या होगा? सी हियर, what will happen? Current will be in this direction. Yes or no? So this is what? Anti-clockwise induced current ना? Yes or no student? यहाँ पर क्या होगा? Anti-clockwise induced. Right? Anti-clockwise induced current. समझ पे आ गया सबको? जब मैं नॉर्थ पोल ले रहा हूँ तो किस तरह बिहेव करेगा, जब मैं साउथ पोल ले रहा हूँ तो किस तरह बिहेव करेगा? ऑल गॉट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज दैट, फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल को लिया, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव किया। यहाँ पर मैंने साउथ पोल को लिया तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। स्टूडेंट ये जैसा हो रहा है ये उसको अपोज करेगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, अगर मैंने क्या किया, अभी जो मैग्नेट था ना, मैं दो केस बता देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अभी मैं नॉर्थ पोल को पास नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ। मैग्नेट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये दूर जा रहा है, जब ये पास आ रहा था उसको अपोज कर रहा था, तब ये दूर जाएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा ना स्टूडेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? जब मैग्नेटिक फील्ड पास जा रहा था तो ये साउथ पोल बन के अपोज कर रहा था। जब नॉर्थ पोल उससे दूर चला जाएगा, थोड़ा ना ये नॉर्थ पोल बनेगा तो थोड़ा ना उसको अपोज कर पाएगा, तो उसको और दूर जाने देगा ना, और ये दूर जाने नहीं देगा। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये कौन सा पोल बन के उसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल बन के अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अगर एक मैग्नेट ये इससे दूर जा रहा है तो दैट मींस ये यहाँ पर इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको अपोज करेगा। ये मैग्नेट जो होगा ये उसको अपोज करेगा। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पर वो साउथ पोल बन के ही उसको अट्रैक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो साउथ पोल बन गया मतलब करंट कैसे जा रहा है? देखो,
लेकिन अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? North pole is going away, then it will be clockwise induced current. Getting my point? Right? It will be clockwise induced current. तो समझो, clockwise induced current. सेकेंड केस में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अभी मैंने साउथ पोल को दूर ले लिया. दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल. आई टुक द साउथ पोल अवे फ्रॉम इट. तो ये क्या बनेगा अभी उसको अपोज करने के लिए? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा. तो अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल बनेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पोल बनेगा. तभी नॉट जाके ये उसको अट्रैक्ट कर पाएगा. और जब नॉर्थ पोल पे जाएगा तो ये कौन सा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट. ये सब राइट. तो दूर जा रहा है या पास जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है. और कौन सा पोल दूर दूर जा रहा है, कौन सा पोल पास आ रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होगा. एंड हेंसफॉर व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट. एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट. जस्ट राइट. अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कॉइल रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेट को मैंने क्या किया पता है? घुमाया सिर्फ, ना आगे किया ना पीछे किया. आई जस्ट टर्न इट आउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? उसी जगह पे रख के मैंने उसको जस्ट गोल गुम 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 घुमाया. तो क्या होगा? कुछ करंट इंड्यूस होगा क्या? नो इंड्यूस्ड करंट. नो इंड्यूस्ड करंट. कुछ भी करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि नो चेंज इन फ्लक्स. फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा तभी जाके करंट प्रोड्यूस होगा ना. और अगर कांस्टेंट फ्लक्स लिंक किया तो नो चेंज. तो नो चेंज फ्लक्स, नो चेंज ऑफ फ्लक्स, इसीलिए नो इंड्यूस्ड करंट. समझ पाया? और एक केस बताता हूं, देखो स्टूडेंट्स. when a current carrying conductor is placed beside a closed loop, right? When a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed beside a closed loop, is placed beside a closed loop. When a current carrying conductor is placed beside a closed loop, उसी टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने एक क्लोज्ड लूप के साइड पे रख दिया. फिर देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर समझ पे आएगा. दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. ये क्लोज्ड लूप है स्टूडेंट. दिस इज ए क्लोज्ड लूप. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप ले लिया एंड आई हैव केप्ट हियर, बट आई हैव केप्ट ये हियर. करंट इज गोइंग स्टूडेंट्स हियर एंड सी हियर. स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पहला केस, सारे केसेस बता देता हूँ. पहले केस में मैंने क्या किया, करंट इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट. स्टूडेंट इस पे कांस्टेंट करंट जा रहा है. करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी के ऊपर ये अपना पेन को ऐसे रख दो और पेन को ऐसे पकड़ो जैसे कि आपका थंब जो है ना इस तरफ रहेगा. ये आपका पेन है, ठीक है. पेन को कॉपी के ऊपर रखो जैसे कि थंब इस तरफ रहेगा राइट साइड में. ठीक है, जैसे कि थंब राइट साइड पे रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है स्टूडेंट तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? देखो अपना जो 4 फिंगर है, बाकी का 4 फिंगर क्या हो रहा है? इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा है ना. ना बाकी का फिंगर यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा ना. करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा वो किस तरह होगा स्टूडेंट? इस साइड पे, आउट आउट ऑफ द प्लेन ना. और अगर इस तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन होता. ये सबको समझ में आ गया? अगर करंट इस तरह जा रहा है, इफ थंब इज रिप्रेजेंटिंग द करंट, तो एनसर्कल्ड फिंगर्स मतलब आपकी फिंगर ऐसे घूम घूम होंगे इसके साइड पे, नीचे से होगा ऐसे. आप ऐसे रखे होंगे फिंगर्स को, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो ये फिंगर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब देखो आप फिंगर्स ऐसे हुए, वैसे है अपनी फिंगर्स. ठीक है, तो बाहर की तरफ मतलब यहाँ पर आउट आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये समझ पे आ गया कि डायरेक्शन यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन होगा इसी कॉइल में. ठीक है, ऑल अंडरस्टूड ना? बट वो तो वो नहीं पूछा है ना, वो पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट. यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा स्टूडेंट? एज कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग, सो मैग्नेटिक फील्ड B is also constant.
ठीक है। If B is constant, no change in flux, no change. If no change in flux, students, so no induced current. If constant amount of current is flowing in this case, so आप भूल जाओ, no induced current will be there in this case. No induced current because constant amount of current जा रहा है, constant magnetic field link कर रहा है. अगर constant magnetic field link कर रहा है तो no change in flux, so induced current will be zero. Students, नेक्स्ट केस पे क्या होता है, वही मैंने इसको प्लेस कर दिया. ध्यान से देखो, मैंने कॉइल को यहाँ पर प्लेस कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है. और मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम. एंड स्टूडेंट करंट ऐसे जा रहा है. अभी करंट कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स. करंट थ्रू द कंडक्टर इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस, ठीक है. मतलब यहाँ पर जितना करंट है आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ रहा है, आई इंक्रीजेस. गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? अभी तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा, है कि नहीं? अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज देखो, ये इसकी वजह से अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर में, वो आउटवर्ड होगा या इनटू द प्लेन होगा? बताओ. इस केस में क्या था? आउटवर्ड होगा. आउटवर्ड होगा. दैट मींस ये Outward जो होगा. है आउटवर्ड होगा. तो दिस इज बी ओरिजिनल. जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक कर रहा है वो आउटवर्ड की तरफ है. गेटिंग माय पॉइंट? और वो चेंज हो रहा है क्योंकि करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा होगा. यस और नो? तो ये हुआ ओरिजिनल. मैं उसको ओरिजिनल लिख रहा हूँ. ओरिजिनल का डायरेक्शन आउटवर्ड है. तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स, वो इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा? अपोज करेगा ना, लेंस लॉ कहता है. तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा? इनटू द प्लेन होगा ना. तो इनटू द प्लेन मतलब क्रॉस. तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज बी इंड्यूस्ड विल बी इनटू द प्लेन. समझ में आ गया? बी इंड्यूस्ड इनटू द प्लेन होने के लिए करंट किसे जाएगा? बी इंड्यूस्ड इनटू द प्लेन. मतलब अपना थंब को नीचे की तरफ दिखाओ. थंब को नीचे की तरफ दिखाओ अपनी कॉपी में. तो देखो कैसे हो रहा है फिंगर्स. फिंगर्स ऐसे आ रहा है ना, इस तरफ सारे फिंगर्स पॉइंट कर रहा है ना, इस तरफ सारे फिंगर्स इस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना. क्लॉकवाइज. तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द प्लेन होगा तो करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज ना. गेटिंग माय पॉइंट? और एक बार बताता हूँ शुरू से देखो. करंट इज इंक्रीजिंग सो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. एज करंट इसी डायरेक्शन पे जा रहा है तो यहाँ पर जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है इसी कंडक्टर की वजह से वो कैसा होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा. राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. तो जरूर ये जो कॉइल में रखा हूं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन होगा. अगर इनटू द प्लेन होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो किस कैसा होगा करंट? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तभी जाके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, क्लॉकवाइज. समझ में आ गया? तो इस केस पे क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है. सो इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज, राइट. इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज. इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज. जस्ट लिखो, जस्ट राइट. फिर उसी केस पे पहले वाले केस की तरह हम क्या किया, अभी इस तरह कॉइल रख दिए, ये कंडक्टर जा रहा है एंड आई इज डिक्रीजिंग. स्टूडेंट्स आई क्या हो रहा है? आई इज डिक्रीजिंग. तो डेफिनेटली अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो फ्लाई क्या होगा? फ्लाई भी डिक्रीज करेगा. अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट कैसा होगा? यहाँ पर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेन. दिस इज बी ओरिजिनल, ठीक है. सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है. मतलब आउटवर्ड की तरफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. लिसन माय पॉइंट वेरी केयरफुली. यहाँ पर जो कॉइल है यहाँ पर बाहर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हमेशा उसको अपोज करेगा. मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? उसको इंक्रीज करवाएगा. तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए वो क्या करेगा? बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. समझ पे आ रहा है? तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा. क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ ये डिक्रीज कर रहा है ओरिजिनल और ये उसको अपोज करेगा. अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं देगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने नहीं देगा. समझ पा रहा है? तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए चाहेगा वो. तो इंक्रीज करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सेम डायरेक्शन में और फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो बी इंड्यूस जो है वो क्या होगा? बी ओरिजिनल की डायरेक्शन पे होगा. अगर ओरिजिनल की डायरेक्शन पे हुआ तो अभी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा फिर? तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो कैसा होगा? आई इंड्यूस्ड कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. समझ पे आ रहा है? इंक्रीजिंग के लिए एक बात और डिक्रीजिंग के लिए एक बात. अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है,
फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब इंड्यूस्ड करंट जो है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज कर रहा है उसको ऐड करके इंक्रीज करवाना चाहेगा। गेटिंग माय पॉइंट?